ایک آدمی کے پڑوس میں نیا جوڑا رہنے کے لیے آتا ہے۔ وہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ ان میں کچھ نہ کچھ تو پرابلم ہے۔ پرابلم تب آئی جب وہ پڑوس کی بیوی سے obsessed ہو گیا۔ اس سے ساری کمپلیکیشن ہو جاتی ہے۔ ہیلو فرینڈز، آج میں آپ کو دی نیبرز 2017 کی ہالی ووڈ مووی ایکسپلین کرنے والی ہوں۔ مووی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم اپنے مین کریکٹر مائک کو دیکھتے ہیں۔ مائک گھر میں ہی ایز اے فری لانسر کا کام کرتا ہے۔ اس کی وائف ایز اے ٹیچر جاب کرتی ہے۔ ایک دن اس نے کھڑکی سے دیکھا کہ اس کے پڑوس میں نئے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ایک کپل ہے، وائف کا نام ہے جینا اور ہسبینڈ کا نام ہے اسکاٹ۔ وہ ان کو ویلکم کرنے کے لیے گیا۔ اسکاٹ اس سے بات کرتا ہے۔ اسکاٹ کے پاس ایک ریسنگ کار تھی جو مائک کو بہت اچھی لگی۔ اسکاٹ کہتا ہے میں تمہیں بھی دلوا سکتا ہوں۔ اصل میں اسکاٹ ایک سیلز مین ہے تو اس کا یہی کام ہوتا ہے۔ مائک اسکاٹ کی وائف جینا سے بھی ملا۔ مائک کے ہاں سنڈے کو باربیکیو ہونے والا تھا۔ وہ کہتا ہے تم دونوں آ سکتے ہو۔ اسے ان دونوں کو جاننے کا اور بھی وقت ملے گا۔ رات کو جب اس کی وائف گھر پر آئی تو اپنے پڑوسیوں کے بارے میں اسے بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے انہیں باربیکیو کے لیے انوائٹ کیا ہے۔ وائف کہتی ہے تم کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، میں نے اس باربیکیو میں صرف فرینڈز کو بلایا تھا۔ یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل ان دونوں میاں بیوی میں زیادہ کنیکشن نہیں ہے۔ بیوی کا نام ہوتا ہے لیزا۔ وہ ایک ٹیچر ہے جو آج کل اپنی جاب کو لے کر پریشان ہے۔ اس کے بعد ہم سب کو باربیکیو پر دیکھتے ہیں۔ یہاں پر بھی اسکاٹ مائک کے فرینڈ کو کار سیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مائک باربیکیو کر رہا تھا تو جینا اس کے پاس آتی ہے اور دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ مائک اس سے پوچھتا ہے تمہاری شادی کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ جینا کہتی ہے 4 ماہ، مگر ہم بہت سالوں سے ایک ساتھ تھے۔ جینا نے نوٹس کیا تھا کہ مائک کا گارڈن بہت ہی بیوٹیفل ہے۔ اس کے نیو ہاؤس میں بھی بہت سی جگہ ہے۔ وہ بھی اسے ڈیولپمنٹ کرنا چاہتی تھی۔ مائک سے پوچھتی ہے کہ آپ مجھے ہیلپ کر سکتے ہو؟ مائک کہتا ہے ضرور کر سکتا ہوں۔ اس باربیکیو میں اسکاٹ جینا کو اچھے سے ٹریٹ نہیں کرتا، اپنا سارا کھانا اسی کو لانے کو کہتا ہے، اس پر زور زور سے چلاتا ہے۔ یہ مائک کو اچھا نہیں لگتا۔ رات کو لیزا اور مائک اسکاٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ لیزا کہتی ہے اسکاٹ بہت ہی فنی ہے۔ مائک کہتا ہے وہ فنی نہیں ہے، بس عجیب سے قصے سناتا ہے۔ وہ اسکاٹ کو پسند نہیں کرتا تھا۔ رات کو مائک کھڑکی کے پاس کام کر رہا تھا تو وہ اپنی کھڑکی سے جینا اور اسکاٹ کا روم دیکھ سکتا تھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ دونوں انٹیمیٹ ہو رہے تھے۔ پھر وہ لیزا کے ساتھ اپنے بیڈ پر آ گیا۔ وہ انٹیمیٹ ہونا چاہتا تھا مگر لیزا اسے منع کر دیتی ہے کہ میں کل بہت بیزی ہوں۔ اگلے دن اپنے گارڈن کو جینا دیکھ رہی تھی تو مائک باہر آ گیا۔ اسے پریشانی ہو رہی تھی کہ اسے اب کیسے سیٹ کرے۔ مائک کہتا ہے تم سٹارٹ کرو، جلدی جلدی سب کچھ ہو جائے گا۔ مائک اسے بہت ساری ٹپیں دیتا ہے۔ جینا نے مائک کے گھر میں اس کے بیٹے کی فوٹوز دیکھی تھی تو پوچھتی ہے وہ کہاں ہے؟ مائک کہتا ہے کہ وہ تمہاری عمر کا ہے اور وہ الگ ہو گیا ہے۔ جینا آج کل سوچ رہی تھی کہ کیا بچے ہونے دینے چاہیے یا نہیں۔ اصل میں اسکاٹ کو بچے چاہیے مگر جینا سوچتی ہے کہ اسے اپنے کیریئر پر دھیان دینا چاہیے۔ وہ کہتی ہے بچوں اور کیریئر پر ایک ساتھ دھیان نہیں دے سکتی تو مائک کہتا ہے تم میری طرح گھر پر رہ کر جاب کرو، دونوں کو ایک ساتھ مینج کر سکتی ہو۔ ان باتوں کے بعد رات کو جب مائک اور لیزا ڈنر کر رہے تھے تو لیزا اپنے دن کے بارے میں مائک کو بتا رہی تھی۔ اپنی جاب پر اس کو بہت زیادہ کام ہے اس لیے زیادہ پریشان تھی مگر مائک کا اس پر تھوڑا بھی دھیان نہیں تھا۔ وہ صرف لیزا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ لیزا اس سے پوچھتی ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو مگر وہ ٹال دیتا ہے۔ آج رات وہ کھڑکی سے دیکھتا ہے کہ جینا اور اسکاٹ کی بہت زور سے لڑائی چل رہی تھی۔ ایک زور سے آواز آئی جس کے بعد جینا چپ ہو گئی۔ اسے لگا کہ اسکاٹ نے اسے مارا ہے۔ وہ اس بات سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اگلے دن مائک کے پاس اس کا فرینڈ آیا ہوا تھا۔ مائک اسے جینا اور اسکاٹ کے بارے میں بتاتا ہے۔ برائن کہتا ہے مجھے بھی لگتا ہے کہ اسکاٹ ایک گھٹیا انسان ہے، اس نے مجھے بھی کار سیل کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب یہ دونوں بات کر رہے تھے تو جینا اپنے گارڈن میں کام کرنے کے لیے آئی تھی۔ برائن اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ وہ بہت ہی بیوٹیفل ہے، تمہیں اس کے ساتھ ٹرائی کرنا چاہیے۔ مائک کہتا ہے کہ وہ جینا کو اس نظر سے نہیں دیکھتا مگر اصل میں اس کے بارے میں آج کل بہت سوچتا ہے۔ آج بھی مائک نے لیزا سے بات کی کہ کیا تمہیں ہمارا ہنی مون یاد ہے؟ اس کے بعد وہ دونوں انٹیمیٹ
हो जाते हैं। इंटीमेट होते हुए माइक को अपनी बीवी में जैना नजर आती है। अगले दिन फिर से माइक अपने गार्डन को देख रहा था, तभी जैना के पास स्कॉट आया। इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो जाता है। फिर से माइक को लगा कि स्कॉट ने जैना को मारा है। वो आज रात काम पर तवज्जो नहीं दे पाता। कुछ दिनों के लिए माइक का बेटा विजिट के लिए आया। माइक के बेटे को भी स्कॉट उस कार की वजह से बहुत कूल लगता है। अगले दिन जब माइक ग्रोसरी लेने जा रहा था तो उसने जैना को बाहर देखा। उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर जैना अपने योगा क्लास के लिए लेट हो चुकी थी तो जल्दी से उसे इग्नोर करके चली जाती है। बाहर जाकर वो अपने फ्रेंड ब्रायन से मिला। ब्रायन फिर से उसे जैना के बारे में उकसाता है। माइक कहता है कि स्कॉट जैना को बहुत मारता है। ब्रायन उसे कहता है कि उनके घर का मामला है, तुम इन दोनों में घुसो मत। माइक जब घर आया तो स्कॉट लीजा और माइक के बेटे को स्टोरी सुना रहा था। जाते जाते वो सबको डिनर के लिए इनवाइट करके जाता है, मगर लीजा जरा बिजी होती है इसलिए मना कर देती है। उनकी जगह पर उनका बेटा एलिस जाएगा। माइक ने देखा कि एलिस की जैना और स्कॉट से अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी है। वो बहुत बार उनके साथ हैंग आउट करता है। ये माइक को अच्छा नहीं लगता। इसके बारे में उसने लीजा से बात की कि स्कॉट अच्छा आदमी नहीं है, एलिस को उसके साथ नहीं रहना चाहिए। लीजा कहती है कि वो बड़ा हो चुका है, तुम इस तरह से उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। माइक को जैना से बात करनी थी तो वो हर वक्त उस पर नजर रखता था। एक दिन जब वो कचरा फेंकने के लिए गई तो माइक भी उसके पास आता है। कहता है मैंने तुम दोनों को फाइट करते देखा था। जैना कहती है इतनी सीरियस कोई बात नहीं है, स्कॉट कभी कभी ज्यादा पी लेता है तो कंट्रोल खो देता है। जैना कहती है बाकी सब ठीक है। स्कॉट फिर से घर के अंदर से चिल्लाया कि जल्दी आओ। एक दिन माइक और जैना अपने गार्डन के लिए प्लेनेट वगैरह खरीदने गए। बात करते करते माइक उसे अपनी यंग एज की स्टोरी सुनाता है कि वो क्या क्या स्मोक करता था। जैना कहती है कि मैं भी स्मोक करती हूँ, मगर कभी कभी। फिर वो दोनों जैना के घर पर स्मोक करते हैं और स्मोक करते करते जैना सब सच बताती है कि स्कॉट का हमेशा गुस्से का प्रॉब्लम था। पहले कम था मगर आजकल ज्यादा हो गया है। स्कॉट को बच्चे चाहिए और जैना कंफ्यूज्ड है। उसे लगता है कि स्कॉट के साथ शादी करना एक गलती थी। माइक कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें बच्चे नहीं होने देने चाहिए। जैना को अच्छा लगा कि माइक उसको समझता है और माइक को गले लगा लिया। ये दोनों फिर किस कर लेते हैं। आज रात जब माइक और लीजा बात कर रहे थे तो लीजा कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं भी योगा की क्लासेस लूँ। जैना मुझे अपने साथ लेकर जा सकती थी। माइक को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता कि जैना और लीजा एक साथ योगा क्लास पर जाएं। लीजा को ये बात अजीब लगती है। वो कहती है जैना यंग है, ब्यूटीफुल है, क्या तुम उसे लाइक करते हो? माइक कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दिन माइक ने जैना और स्कॉट की बहुत बड़ी फाइट सुनी। उसमें जैना जोर जोर से चिल्लाती है और कुछ चीजों के टूटने की आवाज भी आती है। माइक जल्दी से वहां पर पहुंच गया। जैना जमीन पर थी। वो अंदर जाता है तो स्कॉट उस पर भी गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माइक कहता है कि मैंने कुछ टूटने की आवाज सुनी थी। स्कॉट कहता है यहाँ सब कुछ ठीक है, तुम अपने घर जाओ। माइक स्कॉट की सुनता नहीं और जैना से पूछता है क्या तुम ठीक हो? स्कॉट उस पर और भी गुस्सा हो जाता है। जैना माइक से कहती है सब कुछ ठीक है, बस एक फ्लावर पॉट गिर गया था। माइक जा नहीं रहा था तो स्कॉट कहता है कि तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या तुम मेरी वाइफ में इंटरेस्टेड हो? जब भी वो स्विमिंग पूल के पास आती है तुम उसे देखते रहते हो। माइक कहता है तुम बहुत घटिया आदमी हो और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। लीजा घर आने पर उससे पूछती है कि क्या हुआ है। माइक उसे सब कुछ बताता है। लीजा कहती है क्या तुमने पुलिस को कॉल की? माइक कहता है कि नहीं। लीजा कहती है तुम्हें इस तरह उनके पास नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें भी कुछ हो सकता था। जो भी चल रहा है ये उनका आपस का मामला है, तुम्हें इस तरह उनके बीच नहीं पड़ना चाहिए। माइक फिर भी मानने को तैयार नहीं था तो लीजा कहती है कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रही है, आजकल तुम जरा अलग हो गए हो। लीजा ने उसे घर से बाहर निकल जाने के लिए कहा। माइक अगले दिन सामान लेकर जा रहा था मगर लास्ट टाइम जैना से बात करना चाहता है। उसके घर पर गया और उससे पूछा कि तुम ठीक हो? जैना कहती है कि सब कुछ ठीक है मगर अब वो स्कॉट के साथ नहीं रहने वाली। उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड है, उससे बात हो गई है, वो उसके हाली घर में रहने वाली है।
माइक कहता है मैं भी घर छोड़कर जा रहा हूँ। जैना को लगता है शायद उसकी वजह से ये सब हुआ। माइक कहता है वैसे भी हमारे बीच बहुत प्रॉब्लम थी, मैं एक अच्छा सा घर रेंट पर लूंगा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आकर रह सकती हो। जैना को ये प्लान अच्छा नहीं लगता। उसने जब माइक को किस किया था वो सिर्फ हाय थी, उसे माइक के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। माइक भी फिर वहाँ से चला जाता है। माइक अपने बेटे को कॉल करता है और कहता है कि मेरे और तुम्हारी माँ के दरमियान कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मैं कुछ दिन घर से बाहर रहूंगा। मगर बेटा कहता है कि माँ ने तो कहा है कि अब तलाक ही होगी। एक दिन माइक से मिलने के लिए उसका दोस्त ब्रायन आया हुआ था। वो माइक से पूछता है कि तुम्हारे और जैना के बीच कुछ हुआ था। माइक कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी वो दूसरे शहर जा चुकी है। ब्रायन कहता है कि मैंने तो अभी अभी उसे सिग्नल पर देखा है, वो अभी भी स्कॉट के साथ ही है। जब माइक इसके बारे में सुनता है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है। वो अगले दिन अपना कुछ सामान लेने के बहाने फिर से जैना को देखता है और उससे पूछता है कि तुम गई नहीं। जैना कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब वो उस बच्चे को चाहती थी। वो कहती है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स हल करने की कोशिश कर रहे हैं। माइक कहता है अच्छा है। आज माइक को अपनी गलती महसूस हुई। वो लिजा को फिर से मनाने की कोशिश करता है। वो उसके लिए डिनर बनाना चाहता था मगर लिजा उसे इग्नोर कर देती है। रात में जैना जरा अपसेट थी तो बाहर आकर स्मोकिंग करने लग गई। माइक जी देखता है और उसे कहता है कि बेबी के लिए अच्छा नहीं है। तभी स्कॉट आ जाता है। वो जैना पर चिल्लाने लगता है। माइक उस पर गुस्सा हो जाता है, कहता है उसे इस तरह ट्रीट मत करो। वो जैना को घसीटकर अंदर ले जा रहा था। माइक ने स्कॉट को मारने की कोशिश की मगर स्कॉट माइक को जोर से पंच मार देता है। माइक फिर से उठकर स्कॉट को रोकने की कोशिश करता है। तभी माइक के हाथ में गोल्फ की बैट आ गई। उसने जोर से उसके सर पर मार दी। जैना माइक पर ही गुस्सा हो गई कि तुमने ये क्या कर दिया। वो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल लगाती है मगर स्कॉट की डेथ हो चुकी थी। यहाँ पर ही मूवी एंड हो जाती है। अगर हम देखें तो माइक और जैना दोनों फाल्टी कैरेक्टर थे। स्कॉट जैना को बहुत मारता था मगर फिर भी वो स्कॉट के साथ रहना चाहती थी। बहुत ही कंफ्यूज थी कि उसे करना क्या है। दूसरी तरफ माइक भी अपनी शादी से खुश नहीं था। वो जैना में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लेने लगा और बात तलाक तक पहुंच गई।